थोड़ा सेंटर एकदा समोर समोर बघा एकदा सर सेंटर धन्यवाद सर लुक किया सर सामने सर सामने सर सामने आजा लुक सेंटर मैप सेंटर लो समोर समोर ते समोर होल्ड होल्ड by one more center hello here center coco Pavin center Thank you. local center समोर सेंटर लगा सर सामने सर यहाँ पे एक बार सेंटर थैंक यू। आजा ना सर समोर ना सर समोर इनके समोर पांचवी कक्षा में हम साथ में सर एक ग्रुप फोटो इनके समोर सगळे सर सामने सेंटर लुक हियर थैंक यू जाना ही मत आजा 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 या सेंटर जी संतोष अरे इधर एक सर सामने सामने You guys are already killing it, man. संकल्प के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है. The series features a remarkable ensemble cast, including the most amazing Nana Patekar साहब, ladies and gentlemen. मोहम्मद जीशान अयूब साहब के लिए जोरदार तालियां. संजय कपूर साहब, नीरज काबी, our favorite Kubra Seth in the house, and क्रांति प्रकाश झा, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां. और आज हम इसी पावरफुल कहानी की एक झलक देखने के लिए यहां आए हैं. Welcome to the trailer launch. Let me just do this officially. Welcome to the trailer launch of Sankalp, launching only on Amazon MX Player, which will stream on the service 11 मार्च से absolutely free. ये सबसे कमाल की बात है. Thank you sir, ताली बजाने के लिए. I was waiting for that. I swear on God. Okay, हर पावरफुल कहानी के पीछे होता है एक बिलीफ, एक दृढ़ संकल्प, और संकल्प के साथ इस बिलीफ को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर लक्स कोजी. Ladies and gentlemen, thank you so much Lux Cozy for partnering with Amazon MX Player on Sankalp. अब बात करते हैं उस सर्विस की जिनके बिना ये कहानी करोड़ों लोगों तक हरगिज नहीं पहुंच पाती. Amazon MX Player, जो कि है इंडियाज लीडिंग फ्री प्रीमियम एड सपोर्टेड एंटरटेनमेंट सर्विस. भाई तीन चीजें अरुणा मैम, फ्री, प्रीमियम, मास रीच. मतलब इससे ज्यादा कमाल का कॉम्बिनेशन और क्या होगा? एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. In a country where stories travel fastest
Amazon MX Player ensures that powerful content is not restricted, it's democratized. और इसी वजह से it offers a diverse range of award-winning web series जैसे कि आश्रम, reality shows like Rise and Fall, thrillers and action in the form of Hunter, Bhai, और ये लिस्ट ना बड़ी लंबी है. Lux Cozy presents Sankalp is yet another example of their commitment to stories that challenge, question, and provoke thought. May I now invite on stage the team that brings us path-breaking shows one after another, creating great entertainment for audiences and meaningful opportunities for brands in multiple formats. Before I call them on stage, मैं चाहता हूं हर एक नाम के साथ दिल से तालियां और सीटियां यहां बजें, because these people are really, they are into it. उन्होंने कहा है हम audiences को best से best entertainment देने वाले हैं. So we'll start with head Amazon Ads India, Mr. Girish Prabhu, ladies and gentlemen. हमारे साथ director and head Amazon MX Player, Mr. Karan Bedi. Give it up for him. Director and head of content Amazon MX Player, Mr. Amok Dosad in the house. And Director Amazon MX Player, Miss Aruna Daryanani. Give it up for the gorgeous lady, ladies and gentlemen. Thank you so much for being here with us. गौर से देख लो, यही वो लोग हैं जो कि इस सब को करते हैं ताकि लोगों तक सबसे कमाल का एंटरटेनमेंट पहुंच पाए. Thank you so much. गिरीश सर, मेरा सबसे पहला सवाल ना वो आपके लिए है यहाँ पे. With so much content locked behind paywalls आजकल के ज़माने में, how does a high-scale show like Sankalp prove that free streaming can still drive incremental value, and especially for advertisers? Yeah, see, I think for us, it's about two things. One is broad reach. And Amazon MX Play reaches 250 million monthly viewers, right? So this is very broad, pan-India. And the next is, how do we bring high-quality entertainment to these customers, right? And for free. And the third element is, how do we bring brands to reach these customers who are watching high-quality storytelling like the one that we are launching here? Yes. So it's a part of all the three things. It's a power, of course. ये सबसे powerful लोग हैं यहाँ जिन्होंने इस power की बात कर दी. सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Karan sir, this one's for you. How does Sankalp reflect Amazon MX Player's larger vision of democratizing premium entertainment in India for us Indians, and of course global reach तो है ही हमारी. तो देखिए, we sort of invented this space of premium content for free. And I think we've been doing it for many, many years. Prakash ji has been a collaborator with us for, I would say, one of the first shows that did this in the market. That was Ashram many years ago. Yes. Many more to come. And we enabled this entire category to really be born. And we continue to double down on it. That we continue to give people really high quality entertainment for free. As you pointed out, and I think there's nothing more that, nothing that you can do more than that to actually democratize access to high quality products of any kind. Yes. And I think we've done it for entertainment, and we will continue to do it in many ways, shapes and forms going ahead with, great collaborators like Prakash ji, like Nana sir, like everybody else. And we'll continue to deliver on this promise to our customers. Absolutely. सर ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि quite literally और बहुत seriously हमने संकल्प ले लिया है हर किसी को entertained रखने का पूरे देश दुनिया में. Thank you so much, sir, for sharing that. Amok sir, this one's for you. How does Sankalp reflect Amazon MX Player's commitment to ambitious, large-scale premium storytelling, particularly with Prakash sir, of course, on board, and when Nana sir makes his OTT debut? क्या बोलना चाहेंगे sir? I think we couldn't have asked for anything more. And I just want to underline one fact that the space of socio-political thrillers, I don't think there is anybody in the country who does a great job as Prakash sir does. Absolutely, sir. Absolutely. His filmography, the kind of stuff he's done on Ashram for us, the audience love is amazing. So it's an honor for us to have him be the showrunner, be the creative powerhouse for this. Nana sir is joining. It was a very easy decision for all of us to make when you have him, both of them at the helm of it, with Zishan, Cobra, Sanjay, Kranti. It's an ensemble to die for, and I think audiences would love to, or are already excited when they saw the teaser out. So we are looking forward to put it out for consumers. Absolutely, sir. Thank you so much for sharing that. Talking about excitement,
वो ना चेहरे पे वो बड़ी सी स्माइल में दिख रहा है। अरुणा मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। यू नो दिस वंस फॉर यू। आई नो शी नोज कि हम कुछ बहुत ही बड़ा लेके आए हैं। लास्ट टाइम आश्रम में ऐसा कुछ किया था हमने, हम वापस से आए हैं। प्लीज टेल अस व्हाट मेक्स संकल्प a marquee title for Amazon MX Player, especially on a service that reaches over 250 million users every month, ma'am. And there's another part to this question. How does a show of this scale push the envelope in the competitive AWOD space? So before I answer that question, I want to actually break a myth that women don't enjoy socio-political thrillers. That's a big myth. We love it. Right? She said it. Uh, Ashram broke all records in India. It is the most watched digital show, and we are hoping that Sankalp now crosses that. Yes. So, as Karan said, our goal has always been to offer great quality content for free, and Sankalp lives up to that. Thank you so much. Ma'am ne kaha, bas, you know, a woman of few words, and I'm going to kill it with that. Thank you so much for sharing that. Ladies and gentlemen, is leadership ke liye ek baar zordar taaliyan ho jaएं. I would request all of you to kindly take your seats, क्योंकि ये तो शुरुआत है, अभी तो असली कहानी बाकी है. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सबके लिए, यहाँ पे जितने लोग भी ऑफ कोर्स ये कमाल कर रहे हैं इसका हिस्सा. Ladies and gentlemen, क्या बात है सर. वेलकम सर. मुझे लगता है जब आप सेट पे जाते होंगे आधे लोग तो बोलते होंगे हमारा नेता कैसा हो. प्रकाश सर, कैन वी डू इट? हमारा नेता कैसा हो. बस हम दोनों को तो मिल गया काम, एक लेफ्ट और राइट. सर, कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस. यू नो ऑलरेडी थैंक यू. ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ बज संकल्प को लेके. प्लीज मुझे बताएं सर, इसका जो इंस्पिरेशन है वो कहां से आया और कैसे शुरुआत हुई? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने. मैं कहना ही चाह रहा था कि इसका इंस्पिरेशन और इसका श्रेय जो है वो जाता है इसके ओरिजिनल राइटर रेशुनाथ को. She is the one who really worked hard, and the team which helped her from Geo, Mitesh and Tej, they should also be thanked today. और ये पता नहीं कैसे ये भ्रम लोगों के बीच में फैल गया है कि मैं राजनीतिक फिल्में बनाता हूँ या सोशियो पॉलिटिकल फिल्में बनाता हूँ. मैं कहानियाँ कहता हूँ. क्या बात. और मेरे कहानियों की फसल जो है वो समाज और राजनीति से थोड़ी बहुत आती है. बट इवेंचुअली ये जान लें कि जब तक हम लोगों की कहानियां नहीं कहेंगे, until we are able to connect with people, characters, move with them, cry with them, laugh with them, they don't work. So eventually, I'm just trying to tell stories. It just happens that the characters talk about, real issues that they are facing. It just happens. So I have had the pleasure and the honor, and today I would like to, very gratefully thank Amazon MX, because it's taken them some time, but they were committed to it. That they have brought this massive show on the platform. Thank you, Prabhuji. Thank you, Karan. Thank you, Amog. Thank you, Aruna, for doing this, for making this happen. And it is always, an amazing experience. It's not a pleasure. It's an amazing experience of creativity, of energy, of dynamics of characterization whenever I worked with Nana. The way he takes the character, works on it. मुझे पता नहीं चलता है क्या कर रहा है ये आदमी, लेकिन जब ये सामने आता है और जब वो कैरेक्टर
लेकर के आता है तो कुछ कुछ तो मैजिक हो जाता है. So thank you very much, my friend, to whatever we have done and whatever we are planning to do. To all my actors, Kubra, Yishan, Kranti, Sanjay, and several, Neeraj Kavi and several others, all the actors who have put in their best, thank you. And it has been a pleasure, and I'm very, very proud of this show, especially because this, you might think it is socio-political, but there is a very beautiful fantasy which is attached, which is Reshu's creation, I must say, that she has brought in, and I enjoyed working on that. So thank you very much. Again, it was amazing. थैंक यू सो मच सर. प्रकाश सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. और अब जो नाम मैं लेने जा रहा हूं, इंट्रोडक्शन में या तारीफ में, तारुफ में जितना कुछ कहूं वो कम होगा. कितना ही बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दें, मुझे नहीं लगता वो जस्टिफाई कर पाएगा उनके स्टैचर को, उनकी पर्सनालिटी को. जो भी किरदार ये निभाते हैं उसे जीते हैं. गिव इट अप फॉर द वन, द ओनली नाना पाटेकर साहब. लेडीज एंड जेंटलमैन, सब कृपया मंच पर आइए, इसकी शोभा बढ़ाइए सर. थिएटर से सिनेमा तक हीरो भी बने, एंटी हीरो भी बने, और हर दफा एक नई कहानी को अपनी आवाज दी, और क्या खूब दी. सर बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर. थैंक यू. मैं सर एक ही चीज जानना चाहूंगा. यूं तो कई दशकों से आप हमको एंटरटेन करते आए हैं. आपने हमें मौके दिए हैं जहां पे कॉन्वर्सेशन शुरू हुए, डायलॉग शुरू हुए, लोगों ने चीजों के बारे में बातें करना शुरू किया, जो आपने अपनी फिल्म में बड़े पर्दे पे दिखाई. यहां पे सर ये OTT डेब्यू है आपका, Amazon MX प्लेयर पे, उसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, OTT है, टीवी है, नाटक है या सिनेमा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी. काम तो वही करना है. नाना पाटेकर साहब for you. अलग अलग नाम आपने दिए हुए हैं, काम तो वही करना पड़ता है. सिर्फ वो जो दो माध्यम है अलग अलग, उसकी बारीकियां अगर समझो, नाटक का अलग है जी, टीवी का अलग है, OTT टीवी, और सिनेमा का अलग है. तो वो थोड़ी सी जो बारीकी है वो समझ लो तो बड़ी आसानी हो जाती है. सर आपके निर्देशक यहाँ पर हैं. एक प्रकाश के साथ काम करते हुए एक तो है, अपने आप को उसके हवाले कर दो तो बड़ी आसानी हो जाती है. नहीं, मैं सच कहता हूँ, हिंदी मेरी अपनी भाषा नहीं, जुबान नहीं है. मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूँ. शूटिंग के वक्त मुझे प्रकाश कहता है कि तू कर ले, डबिंग के वक्त मैं सुधार लूँगा. और डबिंग के वक्त मेरे साथ बैठ के, मुझे मालूम नहीं बाकी लोगों के साथ बैठता है नहीं बैठता है, हर एक लफ्ज़ जो है, हर एक वर्ड के साथ, ना ये ऐसे है, ये ऐसे करना है, वो अपहरण हो, राजनीति हो, ये हो प्रोजेक्ट. और झगड़ा भी होता है ना जब, तो झगड़े में भी अगर कोई गलत वर्ड बोला तो नहीं, ये बिल्कुल ठीक है नाना, लेकिन ये लफ्ज़ ऐसे बोलो, फिर वहाँ से आगे आगे झगड़ा शुरू हो जाता है. तो उसकी वो जो एक, मैं सच कहता हूँ कि हिंदी उतनी आसानी से, इतनी मतलब हमने वो लल्लन टॉप जो किया था, वो बच्चा इतनी हिंदी जो बोलता है, लल्लन टॉप सौरभ जी, उसकी जो हिंदी है, अगर मुझे वैसी हिंदी आती ना तो मैं मतलब तबाही मचा देता है इस इंडस्ट्री में. क्या कमाल का बोलता है. तो होता है ना, एक आसानी होती है, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं आप, तो वो मैं नहीं कर पाता. लेकिन सच कहता हूँ, इसको अपने आप को हवाले कर दो उसके. अभी नया कुछ हम करने जा रहे हैं तो बड़ा मज़ा आता है. नहीं तो हम क्या होता है, थोड़ी सी सक्सेस के बाद हम बन चुके होता है, हमको सब कुछ आता है, हमें लगता है कि हमारी वजह से फिल्म चली. हमारी वजह से कुछ नहीं होता, होता है कहानी की वजह से. हमारे फिल्म का हीरो जो अगर कोई है, हीरोइन कोई है, अगर फोर्टे कोई कुछ है तो वो कहानी है. और उसके बाद बहुत आसान होता है ऐसे लोग सामने हो तो मैं बड़ा खुशनसीब हूँ. मेरे ज़िंदगी के सभी जो आज तक जो डायरेक्टर है, परिंदा जो थी तो विनोद चोपड़ा की वजह से लोगों के सामने में आया, तो वो मैं नकार नहीं सकता. एन चंद्रा है, राजदत्त जी है, और अपना वो कौन, संजय लीला भंसाली है. खामोशी, लोग कहते थे कि नाना के डायलॉग बहुत अच्छे लगते,
मैंने कहा चलो गूंगा होके देखते हैं, बगैर डायलॉग। तो वो करने का मज़ा है, अपने आप को टटोलने का एक तरीका है वो। तो थैंक यू प्रकाश, बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच सर। नाना सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पिछले 5 दशकों से करीब हम सबको एंटरटेन करते आए हैं, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी, और सबसे कमाल की चीज है क्रेडिट हमेशा दूसरों को दे देते हैं, एंड दिस इज व्हाट मेक्स नहीं, क्रेडिट नहीं, क्रेडिट हम लेते हैं भाई, क्रेडिट देते नहीं। ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, और ऐसे हमको मजबूर करते रहना। हम ऐसे ही, वो जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। ये बच्चा जब काम कर रहा, बच्ची काम कर रही थी, इतना बेहतरीन है कि देखो भाई, कोई सेंचुरी लगाता है, 50 लगाता है, उसी से वो आखिर के 4 बॉल में 6 बॉल में जो 14 रन 17 रन बनाने हैं ना, तो ये वो बनाने वाले जो है वो उतने ही इम्पोर्टेंट है जो जितने सेंचुरी लगाते हैं वो। तो मुझे लगता है कि हर एक छोटा किरदार करने वाले हैं, सभी ने बेहतरीन काम किया है इस पे। सबका सम्मिलित प्रयास है और सबका सम्मिलित संयोग है कि फिल्में बनती हैं। ये क्रेडिट किसी को नहीं। यहाँ थोड़ा हमारे यहाँ जो सामने नजर आता है उसको ज़्यादा लोग मानते हैं, लेकिन जिन लोगों का प्रयास और जिन लोगों की मतलब कहिए आवेश, जिस आवेश से लोग काम करते हैं, हर एक्टर, हर टेक्नीशियन, राइटर, लिखा ना हो तो क्या कर लेगा डायलॉग, क्या बोलेगा? लिखा हुआ है तब तो बोल रहा है ना। बिल्कुल। समझा ना हुआ हो तो क्या कर लेगा? इसलिए कभी भी हम, दुनिया चाहे जो करे, लेकिन हम आपस में बात करते तो हम एक दूसरे का मान उसी वजह से करते हैं। बाकी तो ठीक है, दुनिया जो समझे। तू मान देता है ना, मैं मान देता हूं ना, बट दैट इज मोर देन इनफ। मैं एक नाम बोलना भूल गया था जिसका मैं आज सबके सामने, इसकी प्रोड्यूसर जो है वो दिशा झा जो है, उसका नाम, उसने बहुत बहुत मेहनत की, बहुत सारा और मेरे सहभागी जो हैं, मेरे जो डीओपी हैं या आर्ट डायरेक्टर्स हैं या प्रोडक्शन के लोग हैं या साउंड के लोग हैं, वो सब यहाँ हैं और सबका बहुत संयोग रहता है। सब बहुत, मैं पागलों की तरह काम करता हूँ और लोग पागल बन ही जाते हैं उस मेरे साथ। तो थैंक यू वेरी मच टू सचिन, टू सॉरी चंदन, टू उदय, सुधीर, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, थैंक यू। ये जो साइन करते वक्त 2 रोल के लिए मुझे साइन किया था, एक ये जो किया है वो, और दूसरा था सबके लिए खाना बनाना। तो पैकअप के बाद आके सबके लिए खाना बनाना, ये मेरा और एक काम था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बड़े खुश थे हम। शाम को आने के बाद वो पूरे दिन का जो टेंशन है जो देते हैं ना लोग, तो उतारने के लिए वो खाना बनाना बड़ी अच्छी बात थी। तो थैंक यू टेंशन देने के लिए। कुछ तो आएगा ना तेरे को, एक्टिंग नहीं करेगा तो खाना बनाएगा और क्या। मैंने कहा कि यार कभी कुछ रोल नहीं है तो खाना बनाने के लिए तो लेगा मुझे। चलो सर, विथ योर काइंड परमिशन, अब हो जाए जिस चीज के लिए आए सर, वो ट्रेलर अब सबके साथ साझा कर दें। हमारे बच्चों को बुलाओ ना, सबको बुलाओ पहले। सबको बुलाऊंगा सर, एक बार ट्रेलर देख लें, फिर बड़ी सारी बातचीत करते हैं। अच्छा, और बात with your kind permission, sir. Give it up for Nana sir one more time, ladies and gentlemen, and Prakash sir. Ladies and gentlemen, all eyes on the big screen as we play the trailer of Sankalp. Thank you so much for being here. And now, ladies and gentlemen, the fearless, the dynamic, और screen पर एक ऐसी presence जो तुरंत attention grab कर लेती है और उसको जाने नहीं देती कहीं. Give it up for Kubra Seth, ladies and gentlemen. There she comes. Welcome, welcome. Thank you so much for being here. Ladies and gentlemen, this gentleman, this actor, this performer is known for his dhamakedar and powerful screen intensity. हर रोल को बड़े ही conviction से निभाते हैं. Give it up for Kranti Prakash Jha, ladies and gentlemen. There he comes. Welcome, sir. Welcome. इस ट्रियो के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं यहां पे. You know, we're loving whatever we've seen on that big screen, and of course with the legends here, उनके डायरेक्शन में, उनके सानिध्य में जो आपने काम किया है. भाई आपसे शुरू करेंगे. प्लीज मुझे बताएं
कितना आसान था इस कैरेक्टर में घुल मिल जाना या कितना डिफिकल्ट था, एंड स्पेशली विद द जेंटलमैन्स डायरेक्शन सर? आई थिंक इससे ज़्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जैसा आपने खुद ही बोल दिया, मतलब दो लेजेंड्स जो सामने बैठे हैं। अभी आई थिंक सब लोगों ने वो ट्रेलर देख ही लिया। 10 मिनट की बात में ऐसा लग रहा था कि एक क्लास चल रही है, कुछ नया सीखने को मिल गया। Yes. तो हमारे लिए तो एक 2.5 महीने का कोर्स था। हर सीन करने में, हर बात करने में, कोई मजाक में भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा था। तो जो मेरा पर्पस था इसको साइन करने का, जैसे मुझे पता चला कि इतने बड़े दो हस्तियों के साथ काम करने को मिलेगा, दोनों का फ़ैन रह चुका हूँ मैं, और अभी तक मतलब डाई हार्ड फैन जिसे कहते हैं आप, तो जिस वजह से मैं आया था वो मुझे मिला। कैरेक्टर के बारे में मैं कभी सोचा ही नहीं। कहानी इस वक्त तुम्हें क्या लग रहा है, आके प्रकाश सर 1 या 2 लाइन बताते हैं, और आई थिंक वो एक महामंत्र जैसा होता है जी। कई जगह पे मैं चूक रहा था, मैं पहले भी 1-2 जगह पे शेयर कर चुका हूँ। तो नाना सर बिल्कुल एक टीचर की तरह, एक बाप की तरह, एक बिल्कुल सर रख के हल्का सा कुछ एक गुर बताएंगे एक्टिंग के बारे में कि ऐसा मत कर, ऐसा कर ले। और आपको लगता है कि आपने जितना सीखा था आपने उसको अनलर्न करके कुछ नया सीख लिया। तो कमाल का एक्सपीरियंस था ये तो मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं। कुबरा, मूविंग ऑन टू यू, प्लीज मुझे बताइए, आपने तो संकल्प ही लिया हुआ है कि मैं जो भी काम करूंगी पिछले वाले से बिल्कुल हटके होगा, और वो इंटेंसिटी हो, पावर पैक डायलॉग्स हो, या वो स्क्रीन प्रेजेंस, वो कुछ अलग ही होने वाली है। सो यहाँ पे हाउ वाज इट, गेटिंग इनटू दिस कैरेक्टर एंड स्पेशली वर्किंग विद दिस अमेजिंग ensemble? Well, it's natural. It's natural for me. Thank you. It's natural. Hello. Now I think it's natural for me to speak. No, but it's been an honor, and given any other day, like right now, I'm thinking in English, which used to be my biggest challenge. Yes. And then I have Prakash sir, who's like literally taking me through every line, because oh my God, Reshu, kya Hindi likhi hai bhai. Oh my God, this is like the most challenging Hindi show that I have been a part of, and I'm very grateful to it, because it's true, like Zishan said, मेरे लिए इस शो में काम करना एक वर्कशॉप था हर रोज, और इतने दिग्गजों के साथ काम करना और अपने आप को इस शो में मतलब पूरी तरीके से वो क्या कहते हैं, डिसॉल्व कर लेना, आई थिंक इट वाज इनक्रेडिबल. बट आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रकाश सर, बिकॉज he called me into the office to meet him the first time, and I remember him telling me कि मैंने तुम्हारे लिए एक special appearance का part लिखा है इसमें. And then when he met me, he said, "तू जा, मैं लिखूंगा." And when I came back is when I realized that I had more than I could have wished for, more than I could have prayed for, and it has been one of the most incredible experiences to be a part of this show, to work with Zishan, to work with Kranti, to work with Nana sir. Nana sir, you're so kind. In fact, जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि भाई एक्टर्स की एक एथिक होनी चाहिए, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, because Nana sir is one of those rare actors who comes on set on his call time and doesn't go back until it's a wrap. Absolutely. And he's there with you entirely as a human being, as an actor, as a coach, as a teacher, as someone who just loves you. और जिस दिल से हम माट साहब को माट साहब बोलते हैं ना इस शो में, सच्ची एक, you know, for me, by the end of this, you know, shoot, Nana sir was Mat Saab, and Prakash sir was Baba, because that's the kind of feeling you know start with and end with on a show like this. It's a very big privilege to be here, and I'm thanking everyone to be here today, and I'm thanking sirs for making this show and considering me to be a part of it. क्या बात है, कुबरा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. क्रांति भाई, this one's for you. Please tell us, आपने हर एक परफॉर्मेंस के साथ क्रांति मचाई है, हम सभी जानते हैं. You know, we've loved you. जितनी बार भी उस बड़े पर्दे पर देखा है. यहाँ पे फॉर एन एक्टर, you know, जहाँ हम बात कर रहे हैं वर्कशॉप जैसा माहौल, कि उनसे इतना, दोनों से, नाना सर हो, प्रकाश सर हो, सीखने को इतना सब कुछ मिला. सो एज एन एक्टर, जो आपके अंदर वो परफॉर्मर है, उसके लिए कितना मायने रखता है किसी इस तरह के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना? सबसे पहले जियो स्टूडियोज का बहुत बहुत धन्यवाद, Amazon MX का बहुत धन्यवाद. थैंक यू जी. टू द एंटायर टीम एंड स्पेशली दिशा जी, थैंक यू सो मच. मैं अगर आज यहाँ पे हूँ तो शायद आपकी वजह से ही हूँगा.
उसके बाद मैं सर पे आऊँगा, क्योंकि जब पहली बार मैं सर से मिलने आया था, तो जो बिहार के एक्टर होते हैं वो उनके जीवन में एक सपना होता है, जो बिहार से आते हैं। मैं भी बिहार का हूँ, तो मेरे जीवन में सपना था कि भाई जब मैं एक्टर बनने आया हूँ तो एक बार सर के साथ काम करना है। क्योंकि जितने भी एक्टर आ चुके हैं, तो मेरे साथ भी तो ये 10 सालों की मैनिफेस्टेशन है, जो संकल्प के थ्रू आज जो है वो पूरी हुई है हमारी। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरे माता पिता ने मेरा नाम क्रांति प्रकाश झा रख दिया था, उसी दिन मुझे प्रकाश झा सर के साथ काम करने का जो है वो मेरा सौभाग्य लिखा गया था, ऑफ कोर्स। The prodigal son, यार, the son. थैंक यू सो मच सर। इस पूरे शो में जो मेरा पहला सीन था, वो सबसे, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे डिफिकल्ट सीन था। अच्छा, अब नाना सर के साथ था और झा सर, तो क्रांति प्रकाश झा के लिए अपनी लाइफ का पहला सीन, जब आप दोनों को बचपन से देखते आ रहे हैं, तो मैं नर्वस हो गया था, लेकिन थैंक्स टू बोथ ऑफ देम, दे रियली टुक केयर ऑफ मी। उन्होंने मुझे एक दिशा दिखाई, मार्गदर्शन किया, और वो सीन मुझे लगता है कि शायद लोगों को पसंद भी आएगा। और जब जब मैं सेट पर था, मेरा आने का मन नहीं करता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि यार अध्यापक हैं, कुछ और सीखने को मिल जाएगा, देखते हैं क्या कर रहे हैं, ये किया इन्होंने, अच्छा, इस तरीके से। तो ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा ही भावुक सा इंसान हूँ, तो होते होते हो सकता है कि मैं बहुत भावुक हो जाऊँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, रियली मीन्स अ लॉट टू मी टू बी वर्किंग विद सर, नाना सर, एंड एवरीवन इन बीजेपी के लोग बहुत दिल से सुंदर हैं। मैम रेशुनाथ मैम, इतनी अच्छी हिंदी बोलने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है, तो इस पूरे हिंदी के लिए, हिंदी संवाद के लिए आपका दिल से धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है सर। तो खैर हम सबके पीछे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। इतने कमाल की बातें ये सब करते हैं ना, इसीलिए वो स्क्रीन पे इतना सब कुछ रियल दिख रहा है। और रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। मतलब जितना कहा जाए उतना कम है। यू नो, ऑफ कोर्स वी विल इनवाइट यू ऑन स्टेज इन सम टाइम, लेकिन उससे पहले इस कहानी के कुछ और किरदार हैं जो अनफॉर्चुनेटली आज हमारे साथ यहाँ नहीं है, कुछ वर्क रिलेटेड कमिटमेंट्स को अटेंड कर रहे हैं। संजय कपूर साहब और नीरज जी, सो उन्होंने यहाँ पे कुछ मैसेजेस दिए हैं हमारे लिए। कैन वी प्ले दोज वीडियो मैसेजेस प्लीज? संजय कपूर साहब। हेलो एवरीवन, मैं यहाँ लंदन में शूटिंग कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ वहाँ पे ट्रेलर लॉन्च पे नहीं हूँ, बट मेरा दिल दिमाग हर चीज़ आप लोगों के साथ ही है। आई वुड मिस माई होल टीम। इट वॉज द इनक्रेडिबल टीम दैट आई वर्क विद, स्टार्टिंग विद द ग्रेट नाना जी whom I worked with, मैंने शक्ति उनके साथ काम किया, और नीरज जी, जिशान, एंड द इनक्रेडिबल the cast of Sankalp. A special shout out to the one and only Prakash ji, the great Mr. Prakash Jha. Well, Prakash ji के साथ मैं बहुत सालों से काम करना चाह रहा था, और finally मुझे ये मौका मिला. He was in my bucket list, and I really want to thank him that he casted me. I had a great time shooting with him, learnt a lot from him, and yeah, so his energy was absolutely फैंटास्टिक। लोग हमेशा, मैं सुनता रहता हूँ कि बोलते रहते हैं, संजय आप बहुत यंग दिखते हो। पहली बात तो मैं हूँ यंग, इसलिए यंग दिखता हूँ, बट जो प्रकाश जी की एनर्जी है, ट्रस्ट मी, किसी यंग डायरेक्टर की भी नहीं है। ही इज़ बीन इनक्रेडिबल। मतलब कि बिफोर यू कुड यू नो फिनिश योर शॉट एंड even take a sip of water, we knew exactly what he wanted, and the next shot used to be ready. The angles, everything, it was like quick, absolutely, no discussion, nothing. He knew exactly what he wanted to do. Trust me, अगर ये शो किसी और ने डायरेक्ट किया होता तो ये शो को डबल अमाउंट ऑफ टाइम लगता. So yeah, thank you Prakash ji for casting me, and I had a great time shooting this show and learning a lot from you. So enjoy the trailer. I will be back soon and hopefully meet all of you all. Thank you for coming for this launch, and I'm really going to be miss being there, but you know, commitments are commitment. I'm here, I'm too far away, वरना मैं एक दिन के लिए ज़रूर आ जाता. Anyway, all the best and see you also. Yes, before I go, I want to thank even Disha. She was the coordinator between Prakash ji and the whole team, and she did a fantastic job. Disha, we love you and keep on doing this great work. You're very hardworking. Lots of love from me and blessings, and you know it all. See you soon. See the team. I'll be seeing the team very soon. Bye-bye. Wow, संजय सर के लिए तालियां हो जाएं. Of course. नमस्ते. मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं आज संकल्प के ट्रेलर लॉन्च पर पर्सनली प्रेजेंट नहीं हूं. इस सीरीज में प्रकाश झा जैसे दिग्गज फिल्म मेकर के साथ काम करके एक बहुत ही अलग अनुभव रहा मेरे लिए.
साथ ही बड़ा गर्व होता है कि मैं उस सीरीज में हूं जहां नाना पाटेकर साहब जैसे कलाकार हैं और उनके साथ साथ कई सारे बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स। संकल्प एक ऐसी कहानी है जो लीडरशिप, पावर और इन्फ्लुएंस के पीछे के सिस्टम्स को एक्सप्लोर करती है। और मुझे खुशी है आज आप उस दुनिया की पहली झलक देखने वाले हैं। Amazon MX प्लेयर को और तमाम टीम मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय द ट्रेलर। ब्रिलियंट एक्टर नीरज सर, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। मैं चाहूंगा आप प्लीज वापस मंच पर आएं। एक चीज जानना चाहता हूं मैं, थोड़ा सा हट के बात करते हैं। प्रकाश सर ना, व्हेन ही लुक्स इनटू योर आईज, एकदम ऐसा लगता है कि बस, है ना? कुब्रा, प्लीज थोड़ा सा टॉक टू अस अबाउट दैट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी। ब्रीफ के लिए भी अगर उनके पास जाओ, ऐसा लगता है एक स्लोमो में हीरो उतर रहा है ना? As you walk, you think you are wrong. You just walk in there and you're like, I am definitely thinking wrong. Right. I'm just wrong. And then he'll look at you with such, he's waiting for you to say the right thing. Yes. And it's amazing because the right things are coming out of you. They really are. But, sir, Baba, I love you, Baba. I'm not scared of you at all, Baba. I love you. I love you, Baba. I'm not scared of you. Well, you've said it, so let's do the honors. Let's invite Mat Saab and Baba on stage, ladies and gentlemen. Prakash Jha Saab and Nana Patekar Saab. मैं वापस गुजारिश करूंगा, कृपया मंच पर आइए। I know आप लोगों के बड़े सारे सवाल होंगे जिनके जवाब आप चाहते होंगे। आप लोगों ने भी संकल्प लिया हुआ है। So it's over to you now. Can we quickly place the chairs? Yeah? We'll do that. जा दो यहाँ पे, बाद में हम लोग बैठेंगे। ये तो है। That's it. Thank you. So please. इन लोगों के आगे हम बुजुर्ग हैं। And of course, यहाँ पे अब जिन्होंने इस सब को वो परिकल्पना दी है, जिन्होंने इस सब को इस मुकाम पे पहुंचाया है, रेशु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। प्लीज मंच पर आइए। Of course, we want our writer to be here with the entire cast. Give it up for her, ladies and gentlemen. कुर्सियां है कि नहीं? और हैं सर, प्लीज। बहुत है। आप लोग बैठिए। आजा आजा बैठो। निशान भाई अभी बुजुर्ग कह दिया था ना, तो इज लाइक नहीं, अब मैं लास्ट में बैठने वाला हूँ। प्लीज नाना सर, बैठ 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 जा। मैं यहाँ Come, Kranti. Come, Reshu. बेटा बस। जी, I know. So where are we getting the first question from? We'll give you the mic, मैम, वहां पहुंचा देते हैं। जी आइए। अभी केबीसी होगा। हेलो, हाय सर, सेंटर में हाय। नमस्कार पूरी टीम को। बहुत बहुत बढ़िया ट्रेलर, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाय, दिस इज योर हाय कुणाल हियर फ्रॉम इंडिया फोरम्स। सबसे पहले मेरा सवाल नाना जी सर आपके लिए है, और मैं ऐसे ही बुलाता आपको नाना जी सर, मैं अभी कभी नाना सर या नाना जी नहीं बुलाता। सर मुझे ये जानना है कि आपने शुरुआत में कहा कि जैसे आप बहुत साल पहले जब आप लोगों को आपके डायलॉग्स पसंद आते थे, तब आपने खामोशी जैसी पिक्चर कर ली, जब लोगों ने आपको फिर उसकी सराहना दी और इतना प्यार दिया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इतने बड़े करियर को अमास करने के बाद आप जब आज संकल्प जैसा शो करते हैं, इसमें ऑब्वियसली लोगों की खुद की एक इमेज होती है आपको लेकर कि हम नाना जी को देखेंगे स्क्रीन पे तो इस तरह का किरदार होगा या इस तरह से होगा। तो आपके हिसाब से मार्ट साहब में ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग आपको फेमिलियरिटी भी लगेगी, एट द सेम टाइम लगेगा कि ये कुछ नया भी दिखा दिया? नो, तो निर्भर होता है कि डायरेक्टर तुमको किस रूप में पेश करता है, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तुम्हारे पास एक डस्टर होना चाहिए, जो पिछला जो है आपने पोंछ दिया, वो अगला कुछ जो कर रहे हैं कुछ नया है। तो जब तक वो नहीं होगा तो काम करने का मज़ा है नहीं। अपने आप को टटोलने का एक तरीका है वो हर बार, लेकिन उसके लिए पहले पूरा, जैसे मैंने कहा था, सरेंडर कर लो। कोई भी हो, अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम्हें प्रकाश झा मिले, लेकिन मुझसे जूनियर होगा कोई 25-30 साल का भी अगर डायरेक्टर है, उसके सामने पूरा सरेंडर कर दो तो बड़ी आसानी होती है, उनके लिए भी हमारे लिए भी। जिम्मेदारी उनकी बनती है फिर। तो जब तक काम करने का दिल करता है, कुछ नया है,
अब ये जिस तरह की कहानियाँ चुनता है प्रकाश, अब वो कहानी ऐसी है कि मुझे लगता है कि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, तो वो उसको उजागर करना बहुत आसान हो जाता है। वो ऐसे नहीं होता कि कोई ऐसे महाभारत के डायलॉग हम बोल रहे वैसे नहीं, बहुत कलोकियल होता है, तो बहुत आसान हो जाता है। और फिर वो जिम्मेदारी है तुम्हारी कि उसको कलोकियल कैसे बनाए। तो वो जैसे मैंने कहा था, हिंदी बोलना वो उतना आसान नहीं है मेरे लिए, लेकिन कोई भी भाषा अगर प्रकाश नहीं नाना वो इस तरह से नहीं बोलना, बस ये इतना ही कर लो, तो वो उतना ही करना। एक्टर होते हुए क्या करना है, उससे ज़्यादा क्या नहीं करना है, जो तुम्हारा डायरेक्टर बता सकता है। सो आई वॉज फॉर्चुनेट कि ऐसा बंदा मिला। तो बहुत आसानी देखो ना, तो अपहरण देखो और राजनीति देखो, दो तरह के कमाल के रोल है, और वो उसकी वजह से है। तो बहुत आसान होता है, वो सभी कुछ निर्भर डायरेक्टर पे होता है। बोलो बोलो भाई, तना माइक दे रहे ओवर है माइक दे, नहीं वो हेलो नमस्कार। सबसे पहले तो दो चीजें, प्रकाश जी आपका लुक बहुत कड़क लग रहा है और ट्रेलर बहुत उम्दा है। आपसे ये प्रकाश जी से सवाल है, ये समझना चाहूंगा कि जब भी हम आपकी फिल्में देखते हैं, अभी तक जितना भी आपका काम देखा है, हर बार जो किरदार सामने आते हैं उनमें कन्विक्शन दिखता है कि इस किरदार को इससे बेहतर कोई और एक्टर निभा नहीं सकता है। इस बार जो प्रोसेस है किसी भी किरदार को चुनने का, फिर उसको उस एक्टर को उस कैरेक्टर में गढ़ने का, मैं वो आपसे समझना चाहता हूँ, वो चीज कैसे करते हो? मेरा बड़े अच्छे सवाल पूछे आपने। यही काम है मेरा, दूसरा कुछ काम नहीं। सेट के ऊपर ज़्यादा डायरेक्शन नहीं करता मैं। काम यही है कि जो लिखा गया है, जो परिकल्पना हुई है, जो कैरेक्टराइजेशंस है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, वो मैं किस तरह से एक्टर को दूं। क्योंकि एक्टर सब जो मेरे साथ काम करते हैं बड़े सघन अपनी परिस्थिति से जानकार लोग होते हैं, अपने क्राफ्ट को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन वो इस कैरेक्टर को और इस कैरेक्टर के साथ में क्या बनाएगा, किस तरह की कहानी गढ़ेगा, वही मेरा काम है। कि तो शूटिंग पर जाने से पहले हम हर कैरेक्टर के साथ में जितना हो सकता है संभव, उनके पास समय हो, हमारे पास समय हो, हम बिताते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं, उनको मदद करते हैं एक कैरेक्टर क्रिएट करने में, और बाकी उनके ऊपर छोड़ देते हैं। ये सब बड़े मजे हुए कलाकार हैं, ये सब कोई ऐसा नहीं कि तुरंत के आ गए हैं। अब वो जब ये अपना उस थाली में निकाल करके लाते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ वही बात, उसके बाद जो ये अपने लेकर के आते हैं, कुछ तो अपना लेके आते हैं जो उसको एक अलग रंग देता है। कई बार मैं खुद सरप्राइज्ड हो जाता हूं, मैं नहीं जानता हूं कि कैसे क्या आएगा। कुछ जशान कुछ कर जाता है या क्रांति कुछ कर जाता है, वो उस क्षण की महिमा होती है। इसलिए हम कॉन्स्टेंटली ऑर्गेनिकली इवॉल्विंग मोमेंट्स क्रिएट करते हैं जब सिनेमा बनाते हैं। और जब आप इस तरह की आज़ादी देते हैं एक्टर को सारे इंफॉर्मेशंस दे करके, तो कुछ तो मैजिक हो ही जाता है, वो दिखता है। नहीं, और दूसरी बात यह है कि कलाकार की लिमिटेशंस छिपाने का बहुत अच्छा तरीका है उनके पास। जितना कुछ अच्छा है वही वो दिखाते हैं, और जो कमियां हैं वो कभी आपको महसूस भी नहीं होने देते। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच में। मेरी अपनी जो लिमिटेशंस है उस दायरे में मुझे रख के, उसकी है, उसकी सबकी अपनी होती है, तो उसमें रख के वो करके जो है उसी में से जो बेस्ट है वो निकालने की ताकत है उनमें। हेलो, मेरा नाम श्वेता है, IWM बस से। क्रांति जी, आपके लिए सवाल है। जैसे कि अभी आपने कहा कि आपके लिए भी सपना था ये प्रोजेक्ट में काम करना, प्रकाश सर के साथ काम करना, तो जब आपको ये किरदार ऑफर हुआ था तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्योंकि बिहारी किरदार
प्ले करना था, तो आपके लिए और कितना प्रेशराइज फील हो गया था? बिकॉज आप एक खुद बिहारी हैं और बिहार का किरदार जब शो कोई पिक्चर में लाना होता है तो वो काफ़ी अलग रूप में आता है, तो आपने इसको किस रूप में लाया? और नाना सर भी थे तो कितना प्रेशराइज भी फील होता था उनके सामने सीन करना? देखिए मैंने किरदार किया है और वो बिहारी होता है, हरियाणवी होता है, लेकिन वो यहाँ पे किरदार बिहारी था। लेकिन जब पहली बार मुझे फ़ोन आया था दिशा जी का, तो मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि आपका एक सपना पूरा होने वाला है जहाँ पे आप साक्षात झा सर के सामने आप उपस्थित होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं बहुत नर्वस था। लेकिन जब सर से मिला और सर ने फिर मुझे बहुत ही अच्छे से एक अध्यापक की तरह अच्छे से समझाया, उन्होंने बताया, जैसा कि नाना सर ने भी कहा, तो मेरी लिमिटेशन ज़रूर रही होगी, लेकिन जो मेरा बेस्ट हो सकता है वो सर की वजह से निकल के बाहर आया है। और जो मेरा सीन नाना सर के साथ है वो भी शायद मैं कहूँगा नाना सर की वजह से ही शायद इतना अच्छा बना होगा। मैं वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि मैं एक किरदार रहा था, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ दीज टू पीपल मैं ये किरदार निभा पाया। और मेरे लिए अभी मैं कहता हूँ कि सर को भी नहीं पता है शायद, जब मेरे पिता ने जब उनको मालूम चला था कि मैं दिल्ली से अब मैं बॉम्बे जाने वाला हूँ अपनी पढ़ाई छोड़कर, तो उन्होंने एक बहुत कमाल की बात कही थी कि बेटा देखिए वहाँ पे एक अपने यहाँ के डायरेक्टर हैं जिनका नाम है प्रकाश झा सर। सर उन्होंने नहीं कहा, तो मेरे मुँह से निकलता नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि जाके एक बार आप कोशिश करिएगा उनसे मिलने की, क्या पता। और पिताजी अब नहीं है, लेकिन लगभग 10-12 साल हो गए और ये सपना पूरा हुआ। तो मैं बहुत 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 अनुग्रहित महसूस कर रहा हूँ आज, और जहाँ कहीं से भी वो देख रहे होंगे उनको अच्छा लगेगा। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम एंड ऑल आवर ब्लेसिंग्स। Hi, Kubra this side. This is me, Adi from Filmi Gyan. My question to you is that the show has a lot of layers in it, and there are power struggles that way. What will be making that change in your character that will be very connecting to the audience at the same time? In the big power game, क्या change होगा for your character? Well, you'll have to watch the show to see what changes, happen for the character and through the story. Today you've just watched the trailer, but on the 11th of March you'll get all your answers. For me personally, this entire experience was a new universe, a new world, and to be associated so closely with such incredible actors. Zeesh, thank you very, very much. Kranti, thank you very, very much. And of course, these are my friends, and this was an outdoor shoot. We were out together and we were spending a lot of time with each other. So our conversations were not limited to the vanity van or to the set. Even when we finished our day, I think we came back and had a debrief amongst ourselves. आज ये किया, आज वो हुआ. हम लोग आगे के scripts discuss करते थे. Nana sir, I have been so amazed. I have never ever met another actor जो अगले दिन की स्क्रिप्ट खुद अपने हाथ से लिखते हैं और फिर वो अपने लाइंस मेमोराइज करते हैं और आपकी लेखनी बोलते हैं। अरे यार मुझे बहुत आता अच्छा नहीं, इसलिए मुझे रटना पड़ता मुझे है ना। यही तो मैंने भी सीखा कि मुझे भी नहीं आता है तो मुझे भी सीखना पड़ा। मगर आपकी लिखाई इतनी अच्छी है, आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है और आप इतना उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो। मैंने आपसे बहुत सीखा है नाना सर, बहुत सीखा है। थैंक यू वेरी वेरी मच। मुझे पता नहीं है, एक बार खाना भी बनाना सिखा देते तो अच्छा होता। ये नहीं सिखाया यार, एक्टिंग सिखा दी। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन आदि। Hello. कोणी आहे का? कोणाला प्रश्न आहे का? Hello, हाँ I'm विचारा Anushka from Just to Filmy. जोर से। Hello, I'm Anushka from Just to Filmy. So मेरा सवाल ये है कि इतने साल आपने इतने आइकॉनिक रोल्स किए। सवाल कर रही है मुझे? आपको यस सर। सो इतने साल से आपने इतने आइकॉनिक रोल्स किए हैं और आपने मार्ट साहब का कैरेक्टर क्यों चुना एज योर OTT डेब्यू? ऑप्शन नहीं था इसको। और प्रकाश सर के साथ बहुत सालों बाद आप वापस काम करे तो प्रकाश उसको सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस यस क्या था? कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा, बहुत परेशान करता है ये बंदा। सुबह से लेके 12 घंटे काम करना, चलो यार तो उम्र का तो लिहाज करो, लेकिन वो है नहीं उसके साथ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है
कि हमें भी वक्त का वो दिमाग में नहीं रहता था। शाम के 6 कब बजे, 8 बजे, 10 बजे पता नहीं चलता था। तो वो जुनून जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो होता है वो तुम्हारी स्क्रिप्ट की वजह से। वो जो कमाल का एक्सपीरियंस होता है, वो थकान नहीं आती, हालांकि घर में जाने के बाद वो थकान महसूस होती है, लेकिन फिर सुबह उठना है। अभी आज कुछ रिकॉर्ड करना था तो इन्होंने कल मुझे स्क्रिप्ट दी थी, छोटे छोटे कुछ लाइनें हैं एक, लेकिन हमारी वो आदत हो गई है थिएटर के होने की वजह से। वो रटते बैठे हम 11:30 12 बजे तक मैं कल रटते बैठता है, क्या था इस पे देखो, ये करो, ये करो, ऐसे ही थे। लेकिन वो भी रटता रहा मैं, क्योंकि वो आदत है। अब वो तो करना पड़ेगा हमको मालूम कि ये जितने आसानी से बोल लेते हैं। ये बंदा बोल रहा था तो मैं प्रकाश को कह रहा था कि मैंने कहा कितने आसानी से बोलता है, कितना आसान, कितना कंपेयर करता है, तो कितना बहुत अच्छा करता है। हमें नहीं आता वो, हमें सिर्फ वो उतना ही आता है जो दिया हुआ है, हम उस तरीके से उस कैरेक्टर में जाके हम बोल सके। कौन आएगा? विचार रे सर। हाँ, विचार विचार सीधा बोला। हर्ष मिश्रा, मिस मालिनी से। मेरा सवाल आपसे है जीशान जी, जैसा कि आपने बताया कि प्रकाश सर के साथ काम करना और नाना सर के साथ काम करना मतलब बड़ी सौभाग्य की बात है। आप भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते कभी। लेकिन जब आपको किरदार सुनाया होगा, जब कहानी बताई होगी, तो एज एन एक्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ क्या लगी आपको, जो आपने आइडेंटिफाई की कि यार ये मतलब मज़ा आएगा, इसमें डर तो लग रहा है लेकिन मज़ा आएगा करने में? नहीं, आई थिंक देखिए इस तरह से कुछ के बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है। आई थिंक चैलेंजिंग आपको कोई भी किरदार जब आप पढ़ते हैं तो लगता है। उसमें बात यह है कि कहानी के एक बहुत बड़े हिस्से की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वो सब होता है। लेकिन जैसे मैंने बोला, मैं नहीं बोल पाऊँगा उसके बारे में कुछ भी कि मुझे क्या लग रहा था, क्योंकि यकीन मानिए मुझे जब पहली बार मेरी बात हुई, और इत्तेफाक की बात ऐसी, मतलब घबरा भी गया था मैं, सीधे प्रकाश सर ही फ़ोन पे आ गए। मैं किसी से बात करता हूँ, प्रकाश सर ने फ़ोन ले लिया कि हाँ जीशान में, तो मैं हैप्पी बर्थडे बोलते, तो उसमें ही मैं उसमें ही घबरा गया था कि मैंने कहा भाई प्रकाश सर से बात हो रही है सीधे डायरेक्टली, और वो बोल रहे हैं कि सुनो। और सर ने भी पूरे हक से बोला था, जो बड़ी कमाल की चीज़ थी। उन्होंने बोला कि मैं एक शो बना रहा हूँ जिसमें मान लो अगर एकलव्य द्रोणाचार्य को अंगूठा देने से मना कर देता तो क्या होता, तो मैं चाह रहा हूँ तुम एकलव्य का रोल करो। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये कुछ, ऑब्वियसली मतलब उन्होंने हक से बोला। मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने बोला और जो माठ साहब वाला रोल है वो नाना पाटेकर कर रहे हैं। तो इसके बाद ना कुछ बचता नहीं है। उसके बाद मैं इतना केपेबल, इतना स्किल्ड हूँ नहीं कि उसके बाद में और किसी चीज़ पर ध्यान देता। मैं इसी बात पे था कि यार इन दो लोगों के साथ सेट पे होने वाले हैं। देन मुझे बाकी कास्ट के बारे में पता चला। संजय सर, नीरज सर, कुबरा और क्रांति तो बैठे ही हैं, और इवन बाकी भी जितने सब लोग थे। बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पे। फिर दोस्ती हो गई थी। चंदन बैठे हैं, हमारी दोस्ती हो गई थी। अभी मुझे देखे रूप बैठी हैं, सारी टीम हमारी बैठी है, साउंड की वगैरह सब बैठे। उसके बाद ना एक बार आप जब वहाँ पहुँच जाते हैं ना, तब ना ये क्या चैलेंज है, फलाना है, ढिमकाना है, इट्स अ कंप्लीट सरेंडर टू द टीम ऑल्सो। उसके बाद अच्छा मैं गया, अगर नाना सर ने कुछ मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि सुन तू ऐसा क्यों नहीं करता कुछ, तो मैं करूँगा, यह मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। प्रकाश सर ने आके अगर बोल दिया कि हो गया, तो अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बोलूँगा सर एक और ले लें क्या। आई एम सरेंडर्ड। अगर प्रकाश सर को लग गया है, हो गया है, तो इट वॉज अ वेरी ईजी एंड स्मूथ फ्लो। पूरी टीम को सरेंडर करके 2.5 महीना साथ में थे, एक बारी में ख़त्म करके ही वापस आए थे। तो it was great. Thank you. All right, ladies and gentlemen, we'll take 2 more questions, right? Hello. Ji ma'am. Yes, we can see you. I am Pooja Samant. Congratulations to everyone on the dais. बहुत ही entertaining, gripping और exciting trailer है. I am sure ये हर दर्शक इसको देखना चाहेगा। और सोने पे सुहागा फ्री है, तो और क्या कहना। प्रकाश जी के साथ नाना आपका काम करना अक्सर हमने देखा है, तो आपके लिए ये कैसा अनुभव है? बिल्कुल घर जैसी बात होगी कि आपने अक्सर उनके साथ काम किया। जानना चाहती हूँ कि शूटिंग के बाद सेट पर कैसा माहौल रहता था आपके लिए, और आपने क्या खास डिश बनाई और सबको खिलाया? नहीं, शूटिंग तो खैर मतलब कहने के लिए नहीं, घर का माहौल ही रहता था। चलो
सुबह रात को सोने के बाद चलो सुबह ज़रा शूटिंग करते, शूटिंग के बाद चलो खाना पकाते, इतना आसान था। कोई मतलब कोई एक्टर, कोई टेंट्रम्स नहीं है, कुछ नहीं है, जो तुम्हारे हिस्से में आता है सभी खुश थे, हमको यही खाना है, हमको ऐसी वैनिटी चाहिए, ये ऐसे नखरे नहीं थे वहाँ। जो मैक्सिमम पॉसिबल तुमको जो दे सकते हो वो सब कुछ मिला था, तो तकरार करने की कोई गुंजाइश थी नहीं। और रही बात पिछले 10, 12, 15 साल से रिश्ता है मेरा उसके साथ ज़्यादा, तो कोई वो झगड़ा होता है झगड़ा मतलब उसके सिवा हमारा चलता नहीं, वो रेम्यूनरेशन के अलावा वो एक्स्ट्रा होता है हमारा, तो वो तो होता ही है। लेकिन वो झगड़ा वो उस पल, उस वक्त, उसके बाद ख़त्म हो जाते, क्योंकि सच में भाई जैसा रिश्ता है और बना रहेगा वो हमेशा के लिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं शूटिंग करते वक्त। अभी क्या है, हर एक के जो चेहरे हैं, प्रकाश बोलेगा, मैं बोलूँगा, कुबरा बोलेगी, जिशान बोलूँगा, सब हर एक का अपना एक चेहरा मोबाइल होता है, किसी का ज़्यादा हिलता है, किसी का कम हिलता है, तो हर एक का हमारा एक अपना तरीका है परफॉर्म करने का। तो जिशान का, इसका चेहरा बहुत कम हिलता है, लेकिन जो कन्वे करना है वो आंखों से कर देता है, तो हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा हिलता है तो अब हम क्या करें यार। तो लेकिन जिशान को काम करते वक्त मैं सच कहता हूँ, तुझे देखता रहता था मैं, बहुत आसानी से करता है तू, बहुत सुविधा के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती तुम्हारे लिए। तुझे इस बंदे के साथ पहला जो सीन उसने जो उसका जिक्र किया, वो उसको मुझे मारना था डंडे से, वो तो इसके एक्सप्रेशन में बिना मारे भी इतने परफेक्ट आते थे। फिर मैंने कहा नहीं वो सही आने चाहिए, फिर मैंने 2-4 लगा दिए, फिर जो एक्सप्रेशन आए, मैं सच कहता हूँ बेचारे को बहुत सहना पड़ा। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि तेरी एक्टिंग में मेरा भी हिस्सा आ गया उसकी वजह से। बहुत बेहतरीन काम किया है सबने। छोटे छोटे किरदार होते हैं, एकदम छोटे किरदार, इतना बेहतरीन काम किया है। मैं जैसे कहा ना कि एक ओपनिंग बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर और बाद में जो है, सभी की बैटिंग कमाल की है। बैटिंग करनी है तो बैटिंग करनी है, जब फील्डिंग के वक्त फील्डिंग है, बॉलिंग है, उसी तरह से सबने किया है। थैंक यू वेरी मच। Thank you. धन्यवाद। All right, we'll take one last question. प्रकाश जी, हंगामा से आनंद। नाना सर ने तो कहा कि मीडियम और प्लेटफॉर्म का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, काम तो काम होता है। आपके लिए अपने दोस्त को इस फॉर्मेट में डायरेक्ट करना कैसा था? क्योंकि ये जॉनर तो आप मास्टर हो इसके, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि थिएटर, टीवी, OTT सब एक है, लेकिन आपके लिए एज अ डायरेक्टर कैसा था इनको इस लॉन्ग फॉर्मेट स्पेस में डायरेक्ट करना? कहानी कहनी है, पात्र को सही तरीके से दिखाना है और एंगेजिंग बनाना है, चाहे कोई भी माध्यम हो, फिल्म हो, OTT हो, थिएटर हो, जैसा इसने कहा, वो इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट उसी तरह की होती है। और हम काम करते वक्त ये थोड़ी देखते हैं कि यार ये कहाँ आएगा, ये कहीं भी आ जाए, कोई भी देखे, उसकी शक्ति उतनी ही होनी चाहिए, वहाँ कोई कमी ज़्यादा नहीं होती है, ना ही मेरे स्केल में कमी होती है। मतलब फिल्म बनाऊं, राजनीति बनाऊं तो, या ये संकल्प बनाऊं तो स्केल में कहीं कोई कमी होती नहीं है। थैंक्स टू द पीपल हु बैक माय प्रोजेक्ट। कहीं कहीं से रोते गाते पैसे तो दे ही देते हैं, तो बन जाता है। हमारे यहाँ पहले ज़माने में हम ही, जैसे उसने बताया जिशान से, फ़ोन करने के बाद मैं समझता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते, कलाकार होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रकाश अगर मुझे फ़ोन करता है तो मैं फ़ोन उठाऊँ। मेरे मैनेजर से बात करो, मेरी एजेंसी से बात करो, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। एक इतना कोई डायरेक्टर तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में काम देना चाहता है तो मैं एजेंसी से, मेरी उतनी औकात नहीं है। हम आर्टिस्ट को समझना चाहिए बदौलत इनके हम हैं, उनके वजह से है, तो हमको पता चलना चाहिए। लेकिन हम इतने बड़े बन गए हैं ना आर्टिस्ट होने के नाते, हमें लगता है कि हमारे अलावा इनका चलेगा नहीं। बगैर किसी को लेके, कोई स्टार लेके ये बंदा फिल्म का बना सकता है और उसे हिट बना सकता है। तो मुझे लगता है कि हम इनके बदौलत है, वो हमारे बदौलत नहीं है, ये मानना चाहिए हमको। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कहानी आपने किस मतलब वजह क्या है, ये कैसे सूझी आपको?
बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र भी नहीं है। हाँ, Sir, I'm in my 40s. 40। तो इतने में ये ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कहानी कहाँ से आपने? सर मैं बिहार में जोर से ऊपर। हाँ मैं बिहार में पली बड़ी हूँ। हाँ। मेरे पिताजी ब्यूरोक्रेट हैं। 29 साल की करियर में 41 बार उनका ट्रांसफ़र हुआ। सो विच मीन्स ही वॉज डूइंग अ गुड जॉब। तो मैंने ये पास से देखा है, बिहार में पली बड़ी हूँ, सो एक राजनीति की समझ है। वहाँ पे रिक्शे वाले के साथ भी आप बैठें तो वो बहुत सारी इस तरह की बातें करता है। सो इट्स बाय अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। आप वहाँ पर हैं तो ये सब आपके अंदर आता ही रहता है। सो फिर जब प्रकाश सर से मैं मिली और ये कहानी के लिए ही वॉज द बेस्ट पर्सन, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। आप लिखती बड़ा अच्छा है, बोलती बहुत कम है। मैं क्या कहूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत। हम बड़े खुश नसीब है कि मान साहब का रोल हमारे हिस्से में आया इसकी वजह से। और मैं सच कहता हूँ, प्रकाश जब कहता है कि नाना ये करना है तुझे, पूछो उसे कि मैंने कभी ये नहीं पूछा कि ये, मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ सच्ची तुझे लगता है करना? हाँ तुझे करना, तो मैंने करना। तो इतना आसान हो जाता है कि जिम्मेदारी पूरी उसके ऊपर डाल दो और वो देख लो आप बहुत बेहतरीन कुछ बनाया है। मैं अभी उसको पूछ रहा था कितने मिनट का है पूरा सीरियल, 10 का एपिसोड्स है तो 400 मिनट। 400 मिनट मैंने कहा ये लगातार देख पाएंगे लोग? तो कहता है मैं देख लेना, एक बार लगाएंगे तो वो पूरे 400 मिनट वो देखते रहेंगे। तो मैं वो इमीडिएट 24 आवर्स वो मैं मल्टीप्लाई करने लगा कितने दिन लगेंगे। खैर धन्यवाद, बेहतरीन बेटे, तू बहुत अच्छा ये करता है, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, 2 क्वेश्चंस और लेते हैं। अंजलिका मैम एंड प्रशांत सर, वेलकम टू यू। प्रकाश जी, सवाल आपसे है मेरा कि संकल्प जिस वक्त पे आ रहा है, अभी देश और दुनिया में जो हालात हैं वो थोड़े ठीक नहीं है, आपको लगता है सही टाइमिंग है? और दूसरी चीज़ ये कि देश के सोशियो पॉलिटिकल पे तो आपकी नज़र रहती है, दुनिया पे जो चल रहा है उस पे आप, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये प्लेटफॉर्म उस चीज़ के लिए सही नहीं है। एक सेकेंड। और दूसरा सवाल नाना सर से भी है कि अगर आप जो आपने कहा कि OTT आपका पहला ये कर रहे हैं, आप सीरीज देखते हैं क्या? और देखते हैं तो आप एक ही बार में सारा देख लेते हैं या एपिसोड्स? वो निर्भर होता है वो कितनी पकड़ है उसमें। नहीं तो पहले एपिसोड में उसको वो उसके ऊपर वो क्रॉस मार दो। वो पकड़ने वाला कितना है, कितनी ताकत है उसमें, औकात है। एक तो घिनौनापन है नहीं इसमें कुछ, जो है वो बहुत क्लीन है। मुझे वैसी सीरीज वो अच्छी नहीं लगती कि जहाँ जो मुझे नहीं अच्छा लगता जी। प्रकाश जी आप बोलेंगे जी, क्योंकि इसमें इतना क्लीन है। नहीं, समय अच्छा है, अच्छी कहानी के लिए हर समय अच्छा है। समय देख करके रामायण महाभारत थोड़ी पढ़ा जाता है। और जहां तक समय की बात है, किसी भी समय देख सकते हैं 11 मार्च से ऑफ कोर्स संकल्प, जो कि आएगा Amazon MX प्लेयर पे। थैंक यू सो मच ladies and gentlemen for being here। last question for Zishan, if I may। लास्ट बोल दिया आपने, आइए। Hi Zishan, Kavisha from Bollywood Helpline। First of all, congratulations to the team. The trailer looks amazing। Zishan, जैसा कि आपको अब तक आपकी फिल्मोग्राफी में देखा है, मोस्टली पर्सनली आई नो 80 हो गया, क्रिमिनल जस्टिस हो गया, तेरे इश्क में आपका जो छोटा सा डेब्यू था जिसने पूरे भारत को गूज़बम्प्स दे दिए। एक ये जो सीरियस काइंड ऑफ जॉनर्स होते हैं ना, इससे आपको ज़्यादा जाना जाता है ऐसा मुझे लगता है। एंड देन संकल्प में भी ऐसा ही एक रोल था जहाँ पे यू आर वेरी सीरियस अबाउट इट। और ये जो नाना जी ने बोला कि आप जो आँखों से पोर्ट्रे कर देते हैं, तो इज़ इट लाइक हैव यू फाउंड कंफर्ट इन दीज काइंड ऑफ रोल्स या जॉनर्स ओनली, और कुछ ट्राई नहीं करना, या फिर यू आर बीइंग व्यूड इन दैट जॉनर ओनली के यू बीइंग इन दैट रोल आप बेस्ट करोगे इसलिए आपको लिया जाता है? ये तो आई थिंक कोई मेकर ज़्यादा बेटर बताएगा। पर हाँ, ज़्यादा सीरियस काम पीछे आए, पर कॉमेडी के भी आए। और आई होप के तेरे इश्क में वाला कैरेक्टर और 80 का कैरेक्टर सेम नहीं लग रहे थे। हाँ, सेम नहीं थे ना, बस फिर ठीक है। सीरियस जॉनर की फिल्म्स हैं, शो है। आई थिंक आप देखिए तो आप ज़्यादा इजीली समझ पाएंगी। उस तरह से उतना ग्रिम सीरियस वर्ल्ड नहीं है। इट्स सोशियो पॉलिटिकल थ्रिलर, तो थ्रिल में बहुत सारे और फैक्टर्स भी आते हैं। तो आई थिंक 11 तारीख को आप देखेंगी तो होगा। बाकी हाँ, एज एन एक्टर कोई भी एक्टर चाहता है कि अलग अलग चीज़ें
वो करता रहे. I don't think किसी भी एक्टर को कंफर्ट में रहना कोई बहुत ज़्यादा पसंद होता है. आई थिंक हम लोग शायद इकलौती कौम ऐसी हैं जो ढूंढते रहते हैं कि यार थोड़ा कोई कुछ ऐसा मिले जो हमें थोड़ा सा परेशान करे, थोड़ा विचलित करे. तो एक वो सर्च अभी भी चल रही है और आई थिंक वो चलती रहेगी. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ अलग तरह के कैरेक्टर्स मिले. दो ये काफ़ी अलग है वैसे, आप देखिएगा. एक्टरों को सबसे ज्यादा चीज कौन सी परेशान करती है बताऊं? जब उनको कुछ करना नहीं हो. Well, on that note, ladies and gentlemen, that's all we have for you. Thank you so much. We'll have to wrap this up. And before anything else, it's time for a nice photo op. और उसके लिए मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा. Of course, Mr. Girish Prabhu, जोरदार तालियां. So one more time, would like to invite you on stage. Mr. Karan Bedi, Mr. Amok Dusad, and Ms. Aruna Daryanani, please मंच पर आइए. Of course, talking about our producers, it is only fair, ladies and gentlemen. Of course, ज्योति देशपांडे जी हमारे साथ नहीं है जियो स्टूडियोज से. मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा दिशा झा को. Give it up for her, ladies and gentlemen. Mr. Sunil Agarwal, who is the CEO PJP Films, and साथ में बुलाना चाहूंगा तेज करण सिंह बजाज साहब को जियो स्टूडियोज से. We have this amazing actor हमारे साथ, रूप दुर्गापुर. Please आप भी मंच पर आइए. Yes, we want you on this stage for this nice picture. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being so amazing. And we'll get to see Sankalp only on Amazon MX Player 11 मार्च से एकदम फ्री. Thank you so much. Cast. So the cast, we'll request the cast members to stay back. And Prashant sir, आप भी please रुकिएगा इसके लिए. Thank you Aruna ma'am. Thank you Rachel ji. बहुत धन्यवाद. Yeah, the cast and of course Disha. Come. Sorry. Thank you.